Hello. Hello. Yes, Am I audible? yes, Yes, yes. sir. Good morning. You are audible. Yes, sir. Good morning. Very good morning. Very good morning. Sorry for the delay. It was a technical fault in my laptop, so it got delayed by 5 minutes. Sorry. No problem, sir. Okay, then let's start with. So we have Anjali with us who will introduce you. Okay. Hello everyone, myself Anjali Kosti. A very warm good morning to all of you. I would like to welcome you all in the webinar organized by Mudra, the Finance Club of Department of Public Policy and Governance. Mudra, the Finance Club of BK School of Professional Management Studies, is an academic group with objective to encourage budding financial wizards and help them to discover career opportunities, in which we conduct various activities like webinars, quiz, for members to exchange and enrich their knowledge in the finance. On behalf of Department of Public Policy and Governance, I welcome our guest, Mr. Jigar Manyar, who has completed his Bachelor of Commerce from HL College of Commerce and alumni of HLCC. He is an accounting technician from Institute of Chartered Accountants of India. He also has completed internship of 3 years at Dhirubhai Shah and Company, and today he will share his expert knowledge on basic of share market. We welcome you, sir, and over to you. A very warm good morning to all of you. Thank you so much for such a wonderful introduction given by you. I am today very feeling privileged that I am given this an opportunity by BK School of Management to deliver this lecture on basics of the share market. So without the wasting the time, let's kickstart the session. But before starting the session, I would like to tell all of you that I would like to give a disclaimer that this session is going to be an interactive session, means so that you will get the best conceptual clarity of the topic. And please do feel free to ask me anytime, anywhere you feel that you are not getting the point. So please do ask me. And I would like to request all of you, if possible, keep your cameras on so that we can exchange our ideas in a better way. Just a minute, I am sharing the screen. I'm unable to share. Harus. Okay, let's start with. So today our topic is basics of this share market. So first of all, let me tell you that I am going to be introducing you the to the topic, but I will be from telling you everything from the very scratch and telling you about the each and every point from the basic. So, what do you mean by, first of all, what do you mean by the market? Anyone, please, can you define a market? What is market? Hello, am I Sir, a audible? place where things are traded. Uh, uh,
it is not about trading only. Can you be more specific? Like where the basic definition is like where two or more parties meet together and do economic transaction. Yes, exactly. Yes, exactly. Where we Definition. sell anything? Yes, Where exactly. we sell anything? Yes. Sellers, It buyers, is and product is also available there. yes, yes, yes. The market definition is very simple. That a place where buyer and a seller meet in order to transact in any transaction in any item. Now, what is the share market? In terms of finance, there are three types of market. Three types of market. First is stock market. Second is money market. Third is commodities market. I hope the screen is visible to you. Yes, 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 sir. sir. Screen is so Yes, sir. there are three types of market: stock market, money market, and commodities market. So about stock market, we are going to discuss in a very detail points. So what is money market then? Money market is a market where the currency of different countries such as dollar, GBP, Great Britain pound, euro, such like currencies are being traded. Indian rupee is also being traded internationally. And commodities market means such items such as gold, silver, bajra, etc. Bajra means wheat, and all these cereals and pulses are also being traded. So this market is known as commodities market. Now, what is stock market then? So before we dive into the topic, we should understand what is a share market. Means a stock market is a place wherein buyer and seller meet in order to negotiate in shares. So first of all, in order to understand it, we have to define what is share. Uh, in layman's language, can anyone explain me what do you understand about the share? Share of a company. Please raise your hand and answer. Piece of ownership? In what? In terms of what ownership? Which defines value of the company. Uh, Not A specific. kind of asset, intangible. No, it is not an asset. Uh, Company's capital that is divided in small parts. That can be. But let me It's a tell you, share of a shares. company. Ah, Raising share of, funds, raising funds for future projects. yes, yes, exactly. Let me tell you that shares depict the ownership in a company. Means ownership in a company means the company, जो भी कंपनी का असेट है और लायबिलिटी है, उसमें आपका शेयर, वो उसको शेयर बोलेंगे हम लोग. समझ रहे हो आप? There is a claim in the company's assets and earning, which means suppose a company has 100 value of 100, assets की वैल्यू 100 है और लायबिलिटी की वैल्यू 20 रुपीज है, तो 80 रुपीज के ऊपर आपका शेयर, वो आपको क्लियर टर्म्स देगा शेयर का मीनिंग. अभी जितना आपके पास ज्यादा शेयर रहेगा उतना आपका ओनरशिप ज्यादा. सपोज आपके पास एक रिलायंस का शेयर है, एक ही शेयर है, तो आप क्या रिलायंस के ओनर बन जाओगे क्या? प्लीज एनीवन कैन आंसर. आप ओनर गिने जाओगे एक शेयर होगा तो आपके पास? नहीं नहीं, हम पार्टनर में गिने जाएंगे। क्यों नहीं गिने जाएंगे? हम लोग सिर्फ एक उसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए फॉर बीइंग द ओनर, लाइक द परसेंटेज फॉर वन शेयर. एक ही शेयर से कोई नहीं हो सकता. वी हैव टू लाइक अकॉर्डिंग टू नाउ द शेयर्स ऑफ रिलायंस हैव बीन इन क्रोर्स के बहुत लाइक क्रोर्स ऑफ शेयर्स है रिलायंस के मार्केट में. सो अ पर्सन हैज टू बाय a specific amount of shares in order to gain a specific percent of partnership in Reliance. लक्षित, लेट मी करेक्ट यू. आप जो बोल रहे हो ना, वो ओनर कंट्रोल की बात कर रहे हो, ओनरशिप की बात नहीं करो. कंट्रोल मतलब कि रिलायंस को कंट्रोल कौन कर सकता है? वो आपकी बात 100% सही है कि उसके पास 50% और ज्यादा शेयर हो तो पूरी कंपनी कंट्रोल हो सकती है. पर एक शेयर हो आपके पास, मैंने क्या पूछा, एक शेयर हो आपके पास तो आप ओनर गिने जा सकते हो. ऑब्वियसली आप गिने जाओ. Definitely. Okay. आपको अगर रिलायंस का एजीएम अटेंड करना हो, आपके पास एक शेयर हो तो आप अटेंड कर सकते हो. समझे मेरी बात? अभी आप जब भी ये सुनोगे कि भाई शेयर ऑफ द कंपनी, तो आपको ये
अभी शेयर मार्केट के बारे में अपने बात करने वाले हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि शेयर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती होगी, बराबर। ये पहली तो बात कि अगर आज कंपनी को बेचने जाओ आप मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि सपोज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरी बैलेंस शीट दिख रही होगी, आपको दिख रहा है No, स्क्रीन? not now. Not now. Yes, sir. No, दिख sir. रहा है। No, sir. बैलेंस शीट नहीं दिख रही है? इज इट नाउ विजिबल? सर आपकी गूगल मीट की डेस्कटॉप दिख रही है? यस सर, नाउ Yes, sir. Now it's visible. Yes, yes, sir. आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी। मैंने एक इमेजिनेटिव आपको सिर्फ Yes. समझाने के लिए एक इमेजिनेटिव बैलेंस शीट बनाई है। अभी आप देखो तो फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट और अदर करंट असेट, ये सब असेट रहेगा अपना कंपनी का। तो ये असेट आज सब बेचने जाए कंपनी, तो कंपनी को 10 लाख रुपए मिलेगा, 10 लाख रुपए, समझ रहे हो मेरी बात? और उसमें से करंट लायबिलिटी और Yes. लॉन्ग लायबिलिटी अपने लेस कर दे तो शेयर होल्डर के हाथ में कितना बचेगा? 6 लाख रुपए, 5 और 1, 6 लाख, समझ रहे हो आप? Yes, yes. हाँ, तो अभी ये जो वैल्यू आई शेयर की, उसको क्या बोलेंगे अपने? बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रेफर्ड। अभी तो इधर प्रेफर्ड इक्विटी है नहीं, इसलिए मैंने प्रेफर्ड इक्विटी दिखाया भी नहीं है। अभी तो सिर्फ शेयर जो इक्विटी शेयर है वही दिखाया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 और 60 रुपए का बुक वैल्यू आया शेयर का। अगर आप इस कंपनी का शेयर लेने जाओ तो आपको 60 रुपए में मिलना चाहिए, बराबर? मिलना चाहिए ना, यहाँ नहीं मिलना चाहिए? 60 रुपए Yes, में yes. मिलना Yes. चाहिए. Yes, sir. हाँ, मिलना चाहिए. आपको ये 60 रुपीज में नहीं मिलेगा। क्यों? कोई बता सकता है मेरे को कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस होता है हमेशा? क्यों होता है डिफरेंस? कंपनी का वो कंपनी के करंट हाँ बोलिए। सॉरी लेकिन वो कंपनी का करंट सिचुएशन जो होता है, लाइक इफ द कंपनी करंटली इज इन इनकरिंग प्रॉफिट, और या वो कंपनी के पास करंटली कुछ ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है और शेयर्स की वैल्यू आगे बढ़ सकती है, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो प्रीमियम अमाउंट होता है। आप बहुत आप आंसर के बहुत नियर बाय हो। थोड़ा और स्पेसिफाई कर सकते हो आप? क्या थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो? या फिर अभी किसी ने रेज हैंड किया था, ध्रुवीन गांधी। यस प्लीज सर, क्योंकि जो शेयर के नंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं कंपनी के। एक बार में जितने शेयर उसने डिक्लेयर किए उतने ही होते, तो शेयर लिमिटेड है और लेने वाले बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी, इसीलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये एक फैक्टर हुआ। अभी मेन जो फैक्टर है ना, अभी कोई ट्राई करना चाहता है, कोई बोलना चाहता हो कि भाई ये चीज की वजह से? Yes, sir. ऐसा है कि बैलेंस शीट है वो ईयर के एंड में बनती है, ठीक है। अगर ईयर के बीच में कोई उसने बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ दिया और उससे उसकी डिमांड बढ़ी उसके शेयर की, तो ये जो हमने डिसाइड की हुई अमाउंट पर हमें शेयर नहीं मिल सकते, उससे ज्यादा डिमांड होगी तो उसकी शेयर प्राइस भी ज्यादा हो सकती है। डिमांड एंड सप्लाई, आई एग्रीड कि वो एक चीज है। और मेन जो अभी डिमांड एंड सप्लाई तो बाद में जाएंगे जब शेयर ट्रेड होगा। अभी सपोज आप ये तो सब लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं अपना। अभी एक कंपनी अनलिस्टेड है तो उसका तो डिमांड सप्लाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में ट्रेड ही नहीं होता। अभी एक एग्जांपल ले लूं मैं, पेटीएम का एग्जांपल ले लूं। अब पेटीएम कितने सालों से और कितना लॉस इनकर कर रही है, वो तो भी वो कंपनी का वैल्यू कितना है देखो आप, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी का। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर जो होता है उसका मेन जो शेयर की प्राइस डिटरमाइन होती है ना, उसका एक मेन फैक्टर है कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन। मतलब सपोज कि आज कंपनी भले ही स्क्रैप पे खड़ी है, मतलब उसका लॉस अभी आज लॉस हो रहा है, पर फ्यूचर में शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो प्रॉफिट में आएगी और उसका प्रॉफिट बहुत
भयंकर होगा और जबरदस्त होगा। ये स्टार्टअप कंपनीज का ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में वो लॉस बहुत इनकर करेगी, पर फ्यूचर में उसका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए कंपनी का वैल्यूएशन, आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहेगा, राइट? कैपिटल बजटिंग अपने ने पढ़ा है, तो उसमें क्या रहता है कि कैश फ्लो को अपने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। वैसे ही सेम चीज कंपनी के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके अपने प्रेजेंट वैल्यू पे लाए तो उतना पैसा शेयर होल्डर देने के लिए रेडी होगा। जितना पैसा शेयर होल्डर देने के लिए रेडी होगा वो शेयर का प्राइस रहेगा। समझ रहे हो? ये एक मेन फैक्टर होगा। अभी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट कंपलसरी दैट मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू सेम हो। और जो रीजन है मेन वो एक्सपेक्टेशन है। शेयर मार्केट जो मतलब अभी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस रहेगा वो एक शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है। मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको। यस बैंक आपको मालूम रहेगा, शेयर है, ऐसा मालूम रहेगा? यस यस। यस यस। तो यस बैंक का बुक वैल्यू कितना है आपको पता है? किसी को पता है यस बैंक का बुक वैल्यू क्या है? अगर कोई मार्केट ऑब्जर्व करता हो तो उसका बुक वैल्यू क्या रहेगा, आपको पता है किसी को? अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। शेयर यस बैंक का बुक वैल्यू 116 रुपीज है। कितना? 116 रुपए। और आज शेयर कितने में ट्रेड कर रहा है? 15 रुपीज ओनली। इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनी ने जो लोन दिए है वो एनपीए बहुत ज्यादा है कंपनी के पास। तो शेयर होल्डर तो एक्सपेक्ट करेगा कि ये कंपनी डूबने ही वाली है। अभी तो वो डूब भी गई थी पर गवर्नमेंट ने उसे बचा लिया, इसकी वजह से। ये सिर्फ एग्जांपल था। अभी तो मेन जो फैक्टर्स रहेंगे अपने शेयर प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए, वो अभी जो आपने जो दो तीन लोगों ने बताया अभी कि शेयर की प्राइस कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए सप्लाई एंड डिमांड पहली तो बात। एडम स्मिथ अपने बचपन से परेशान करता है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही इकोनॉमिक्स सबको बोरिंग लगता है, पर है यार क्या करें। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर का प्राइस डिटरमाइन होता है। और वो जो एक्टिव मार्केट है ना, उसमें बहुत मेन उसका रोल है डिमांड एंड सप्लाई का। और अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन दूसरा। मैंने आपको बोला कि अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन जो शेयर होल्डर का रहेगा ना, उसके हिसाब से भाव शेयर का ऊपर नीचे रहेगा। कि अब शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि भाई अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तो कंपनी का भाव ऊपर जाएगा। अभी सेंटिमेंट्स, अभी हर्षद मेहता का आपने स्कैम 1992 तो देखा ही होगा। वो उसमें बोलता है कि मार्केट का मसाला किन चीजों से बनता है? 4 चीजों से। और उसमें एक चीज वो बोलता है सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड। मतलब सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स आपने अगर देखा रहेगा तो ये ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात है। वेब सीरीज भी देखो तो उसमें ऑब्जर्व करोगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स मतलब कि सपोज कोई इंफॉर्मेशन आई कि ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ, तो तुरंत उसका इफेक्ट लोगों के सेंटिमेंट्स पे पड़ेगा। कि अगर ग्लोबल मार्केट, वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, पर अपने ने बिठाया है कनेक्शन कि ग्लोबल मार्केट क्रैश करेगा तो अपना भी मार्केट जाएगा नीचे। इसीलिए सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड। अभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब गवर्नमेंट का लीगल कोई कंपनी के ऊपर अभी सपोज ये इनकम टैक्स में टैक्स हाइक कर दिया कि 30% की जगह पे 40% लगेगा टैक्स, तो शेयर होल्डर की तो अर्निंग कम हो जाएगी। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन अभी रहेगी कि मैं ज्यादा और प्रॉफिट अर्न करूं, तो शेयर मार्केट शेयर का जो मतलब पूरा जो इंडेक्स होगा वो डाउन आ जाएगा। इसीलिए इकोनॉमिक इंडिकेटर और फॉलो द लीडर। मतलब वॉल्यूम जो जिस तरह से रहेगा, ये HNI होते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल। अभी आपने किसी को मार्केट में पढ़ा है? आपने किसी को भी कि कोई भी ओदर को पढ़ा है? आपने किसी ने भी पढ़ा हो, कोई भी चीज पढ़ी हो, प्लीज बताइए। अभी इंडियन मार्केट का बिग बुल कौन है पता है आपको? इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल कौन है? राकेश झुंझुनवाला। सही बात है, राकेश झुंझुनवाला। आपको तो पता है उसको। और दूसरा कोई नाम ऐसा बड़ा राकेश झुंझुनवाला के अलावा? दमानी सर। आरके दमानी। यस, राधे कृष्ण दामानी। यस एग्जैक्टली। डीमार्ट के। यस यस। विजय केडिया, राधे कृष्ण दामानी, फिर राकेश झुंझुनवाला, ये सब मार्केट के लीडर्स ही गिनो आप। वो जिस कंपनी पे भी हाथ डालता है बंदा, वो कंपनी का भाव ऊपर जाता ही है। वो अभी आपने किसी ने ऑब्जर्व किया हो, वो IPO आया अपना नजारा टेक्नोलॉजीज का।
किसी ने ऑब्जर्व किया था नजारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ? यस यस। तो उसमें वो स्टार्टअप है ना, वो राकेश झुनझुनवाला का बैकअप है। वो राकेश झुनझुनवाला का उसमें पैसा लगा हुआ है। तो मार्केट में लोग क्या देखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला का पैसा लगा है तो अपना तो पैसा नहीं डूबेगा, इसीलिए वो लोग सोच के पैसा लगा देते हैं शेयर मार्केट। और कुछ भी दूसरा कोई भी फैक्टर आप उठा लो, कोई भी बोलो कि भाई सपोज आज निर्मला सीतारमण, निर्मला ताई है ना, फिनेंस मिनिस्टर, वो अगर एक बार उसने बोला था कि मार्केट कोरोना के टाइम पे मार्केट अपनी फुल हाई पे है, मतलब टॉप पे है मार्केट, मार्केट तुरंत 1000 पॉइंट डाउन हुआ था, तुरंत 1000 पॉइंट विथ इन सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ऐसा क्यों? कुछ भी लोग पैनिक करते हैं ना, तो माल बेच के निकल जाते हैं, माल बेच के निकल जाते हैं, चलो बेचो बेचो बेचो, वैसा होता है। हर्षद मेहता में देखा है ना आपने, कोई भी न्यूज आए तो तरत जोबर बोल देता है बेचो बेचो। वैसे ऐसे होता है शेयर मार्केट का, शेयर का प्राइस डिटरमाइन। अभी इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, अभी ये बोला मैंने आपको कि शेयर मार्केट को, इसको मार्केट, आपने बोला कि मार्केट एक जगह है जहाँ पे लोग, दो बायर और सेलर कनेक्ट होते हैं। तो अभी ये जगह इंडिया में कौन कौन सी है? तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस है, दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में 22 स्टॉक एक्सचेंजेस है। अभी आप इधर राजकोट जाओ, राजकोट में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद में भी है, पर दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है कि सिर्फ जो ट्रांजेक्शन एंटर होते जगह सिर्फ अलग है, कि बायर आज सपोज XYZ जगह पे मिला और वो एनएसई एक अलग जगह है, बीएसई भी एक अलग जगह है। वैसे अभी दोनों एनएसई और बीएसई इस इंडेक्स, एनएसई और बीएसई के खुद खुद के दोनों के इंडेक्स है। मतलब इंडेक्स मतलब क्या, कोई बता सकते हैं इंडेक्स मतलब क्या? वहां पे लाइक बीएससी और एनएससी में जो कंपनी लिस्ट हो रही है कि कुछ कुछ कंपनीज होती है जिनका शेयर से बीएससी में मिलते हैं, कुछ कुछ होती है जिनके सिर्फ एनएससी में मिलते हैं। तो उन कंपनीज और बाकी सारी Top 30 कंपनीज का companies and top 50 companies. हाँ यस यस यस, क्या बोल रहे हो? Top 30 companies Sensex and top 50 companies Nifty. ओके, तो मतलब Okay. टॉप 50 मतलब अभी थोड़ा आगे बोलो कि क्या, मतलब मतलब कैसे होता है? मतलब स्टॉक मार्केट का जो भी वो भी मतलब ऊपर जाता है नीचे जाता है ना, मतलब वो 50 का टॉप 50 कंपनीज और टॉप 30 कंपनीज में डिपेंडेंट होता है। मतलब वो कंपनीज का जो भी प्राइस मतलब अप जाता है डाउन जाता है, उससे निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो कलेक्टिव जो कलेक्टिव कंपनीज होते हैं ना, उस पे। ठीक है, आप बहुत क्लोज थे। सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनी ऑफ इंडियन मार्केट। वो हर्षद मेहता बोलते हैं, आप किसी को याद है कि अपने इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया बहुत आगे जाएगा। मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करके करते हैं, मतलब उसका मतलब ये था कि इंडिया का मार्केट जो है, तो इंडिया का मार्केट का इंडिकेशन क्या कि भाई इंडियन मार्केट अप होगा या डाउन होगा। तो ये दो दो इंडेक्स है, दो मेन इंडेक्स है, निफ्टी और निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में क्या रहता है कि टॉप 50 स्टॉक्स ऑन एनएसई, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 50 स्टॉक्स है। मतलब वो 50 स्टॉक्स वो स्टॉक एक्सचेंज खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी के स्टॉक उसमें रहेंगे। मतलब वो पूरा इंडिकेशन देगा कि मार्केट अगर सब सपोज 50 में से 49 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और अगर डाउन जा रहे हैं तो निफ्टी भी डाउन जाएगा। वैसे ही सेंसेक्स सेम चीज है। सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज, 50 कंपनीज है, वैसे टॉप 30 कंपनीज ऑन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अभी इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस है। सपोज बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी मतलब उसमें सिर्फ सारे बैंक के शेयर्स ही रहेंगे। अभी ये सब इंडियन मार्केट्स रहा। अभी टॉप यूएस का मार्केट देखो तो डाउ जोन्स है, फिर एसजीएक्स है, फिर निकी निकी जो टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम निकी है, नास्डेक है, ये सब वगैरह रहेगा, वो इंटरनेशनल रहेगा। इंटरनेशनल अभी ये सब इंडेक्स के बारे में तो सोच लिया आपने, शेयर भी क्या है वो भी अपने ने समझ लिया। तो अभी कंपनी कभी भी अपना शेयर कैसे अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है? आईपीओ। उसका एक ही रास्ता है, आईपीओ। दूसरा भी रास्ता है एफपीओ, पर अभी आप पहले आईपीओ समझो। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, याद है किसी को, कि अगर कंपनी कोई शेयर इश्यू करती है
तो उसके लिए अपने एंट्री सीखते थे। पता है किसी को कि एंट्री होती भी थी ऐसी कोई? यस यस यस। हाँ हाँ, तो वैसे ही जो अभी सपोज कोई भी आईपीओ, मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आईपीओ जो अभी आया रूट मोबाइल का, सपोज रूट मोबाइल करके एक कंपनी है, वो कंपनी आईपीओ लाई। तो कंपनी आईपीओ लाए, उसमें उसका मतलब क्या, कंपनी ने फंड रेज किया, पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम में से फंड रेज किया। तो क्या हर एक कंपनी फंड रेज कर सकती है ऐसे? हर एक कंपनी ऐसे फंड रेज कर सकती है, पर उसका रेप्यूटेशन, उसका मार्केट में मतलब उसका रेप्यूटेशन क्या है, लोग उसको जानते हैं या नहीं, पब्लिक पैसा डालेगा या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। अगर आज कोई भी कंपनी आप प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर दो और बोलो कि मेरे को लिस्ट करना है, तो वैसे नहीं होता है वो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, कंपनी इतनी रेप्यूटेड भी नहीं है। अगर अभी कंपनी लिस्ट हो जाए, अभी अपनी कंपनी लिस्ट हो जाए, तो लिस्ट हो जाए उसका मतलब क्या कि अगर आज कंपनी 2000 करोड़ का आईपीओ लाई, तो 2000 करोड़ रुपए उसने मार्केट से बोरो किए, मार्केट से इक्विटी फॉर्म में बोरो किए, और वही सेम वो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे अपने। प्राइमरी मार्केट मतलब जो पहली बार शेयर इश्यू होंगे किसी को, पहली बार जब भी किसी को शेयर इश्यू होगा कंपनी का, उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। और अभी लिस्ट होने के बाद जो बाइंग एंड सेलिंग होगा ना, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। तो आईपीओ से रिलेटेड मतलब अभी तक जितना भी अपने पॉइंट डिस्कस किया, तो किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना। हेलो, एनीवन प्लीज, एनी डाउट्स? No, sir. नो नो। बोरिंग तो, अरे यार ऐसे बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना आप किसी को? सर एक No, sir, no. अभी ये आईपीओ के बारे में, आईपीओ के बारे में अपने ने समझ लिया कि आईपीओ क्या चीज है, बराबर। अभी ये चीज रेगुलेट करने के लिए सेबी चाहिए अपने को, मतलब एक रेगुलेटर है। अपने स्कैम 1992 में देखा रहेगा कि सेबी का क्या रोल था, क्या रोल था, कोई बता सकता है मेरे को सेबी क्यों है? हाँ सर। प्लीज कुछ बोलिए। मैनिपुलेट तो नहीं हो? सेबी है ना, वो शेयर मार्केट पर पूरा नजर रखती है, मतलब कंट्रोल करती है। like for security purpose. मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है वो सब? सर रूल्स वो मैनिपुलेशन सब नहीं हो सेबी रहा है? फॉर्म करती है, जैसे आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, सेबी शेयर्स और मार्केट को कंट्रोल करता है। शेयर और मार्केट को। किसी ने न्यूज देखा अभी आजकल रिलायंस के बारे में? कोई न्यूज पता है आपको? सेबी ने पेनल्टी लगाई मुकेश अंबानी के ऊपर 25 करोड़ लगाई हुई है रिलायंस। हाँ 25 करोड़। क्यों लगाई? कोई बता सकता है क्यों लगाई? करण प्लीज बताओ ना, क्यों लगाई इसे पेनल्टी सेबी ने? लेकिन माल प्रैक्टिस के कारण लगाई थी, ऐसा कुछ कहा। ऐसा था, सेबी है ना बहुत सारे रीजन की वजह से पेनल्टी लगा सकता है। अभी सपोज आज मार्केट में रिलायंस का शेयर, मैं समझाता हूँ क्यों, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। अभी मार्केट में रिलायंस का शेयर जो 2021 पे चल रहा है, बराबर। अभी कोई भी टाइम पे मुकेश अंबानी, मतलब अंदर कंपनी में क्या चल रहा है ना, वो शेयर होल्डर्स को पता नहीं रहता है। मुकेश अंबानी के क्या दिमाग में क्या चल रहा है वो अपने को पता नहीं चलता है। उसके दिमाग में जियो लाने का था, तो वो लाया, उसके बाद में अपने को पता चला। अभी उसके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट या कोई कंपनी का, अभी देखो उसका क्या था प्रोजेक्शन की, कंपनी को डेट फ्री बनाना है। डेट फ्री बनाना मतलब जो भी उधार पे पैसा नहीं लेने का, उसका ये उसूल है मुकेश अंबानी का, कि उधर पे अपने को रिलायंस को डेट फ्री करना है। तो ये न्यूज, सपोज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी वजह से ही, पर ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ कि सपोज ये न्यूज अभी मुकेश अंबानी के पास ही थी और उसने अपने दोस्तों को बता दी कि भाई रिलायंस का भाव ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डेट फ्री होने वाली है। 3-4 लोगों को बता दिया और उन लोगों ने बाई कर लिया, 2000 रुपए पे जितने हो सके उतने शेयर बाई कर लिए। और 3 साल बाद, एक साल बाद कंपनी का भाव 5000 पे चला गया, तो 3000 का तो प्रॉफिट हुआ उसको। इनसाइडर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब जो अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर आ गई, और जो सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसे, तो सेबी उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाता है। मतलब जो भी प्रॉफिट किया उसका समथिंग टाइम्स में पेनल्टी होता है। तो अभी मुकेश अंबानी और उसके पूरे ग्रुप के ऊपर 25 करोड़ का पेनल्टी लगा है इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से।
कि अंदर की सर इंफॉर्मेशन आप कोई ऐसी सॉरी सर आप वापस वो रिपीट कर सकते हैं लास्ट पॉइंट जो बोला आपने इनसाइडर ट्रेडिंग वाला। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग समझना है आपको? हाँ हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या? सपोज कोई, अभी मैंने समझाया आपको, रिलायंस, मुकेश अंबानी को अपने कंपनी को डेट फ्री करना था, उसके दिमाग में ही है, अभी किसी को बताया नहीं है, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है रिलायंस का कि भाई उसकी कंपनी को उसको डेट फ्री करना है, बराबर। अभी मुकेश अंबानी को पता है कि भाई अगर ये मैं अनाउंसमेंट करूंगा तो इसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि अगर डेट फ्री होगा कंपनी तो हर एक शेयर होल्डर के लिए इंटरेस्ट, मतलब जो डेट होगा उसके ऊपर ब्याज जाता है, इंटरेस्ट जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कंपनी का कम होता है। अगर वो निकल जाएगा तो शेयर होल्डर के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, इसीलिए कंपनी का भाव ऊपर जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया मुकेश अंबानी ने तो उसका भाव ऊपर जाएगा, पर ये डिस्क्लोज करने से पहले उसने अपने किसी 3-4 दोस्तों को बता दिया कि भाई चलो ये रिलायंस का उठा लो, आप माल जितना भी, स्टॉक जितना भी हो सके उतना उठा लो। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस में अभी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ तो शेयर का भाव ऊपर जाएगा। अभी मार्केट को तो ये पता नहीं है, मार्केट में जो अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है तो उनको तो पता नहीं है कि ये रिलायंस ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला है, बराबर। तो अभी सपोज उसने 2000 के रूप, अभी 2000 भाव चल रहा है, तो सपोज उसने 2000 के भाव से XYZ ने बहुत सारे शेयर्स उठा ली और अभी वो मुकेश अंबानी अनाउंसमेंट कर दे, तो उस अनाउंसमेंट की वजह से तो भाव ऊपर जाने ही वाला है। तो सपोज 4000 चला गया, 2000 का तो मुनाफा हुआ ना उसको। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना वो किसकी वजह से हुआ? इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि वो जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी मुकेश अंबानी ने वो लीक कर दी। अभी वो जैसे एक अंदर का पता नहीं है कि 25 करोड़ का पेनल्टी क्यों लगा है, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा आजकल डिटेल में छापता नहीं है कि इसकी वजह से लगा है। समझ गए आप? वो इनसाइडर ट्रेडिंग समझ गए क्रीना? हाँ ओके सर ये थैंक यू। रिलायंस मतलब आपने जैसे बताया कि मुकेश अंबानी ने ऐसी इंफॉर्मेशन लीक की, तो ये बुल एंड बियर वाला फॉर्मूला उन्होंने यूज किया ना, जैसे शेयर मार्केट में होता है। वैसे ही होता है आजकल। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी बेस हो गया ना। अभी हर्षद मेहता का वो मतलब क्या था कि तब कोई ऐसा कोई क्या बोले कि टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। सर ऐसा आजकल लॉबी नहीं टेक्नोलॉजी था का उस यूज टाइम, करके लोग, हाँ बोल प्लीज। वहां पे उस टाइम तो वैसा लॉबी नहीं था ना, इसलिए सब चलता था। अभी तो पूरे लॉज आ गए ना, इसलिए फिर अभी नहीं चलता वो। सेबी सेबी था, सेबी ऑलरेडी था फोर्स में तब उस हाँ टाइम तो पे। सही, पर सेबी वहां एक्ट पे लॉ 1992 बाद इम्प्लीमेंट नहीं में होता। इम्प्लीमेंट होता था, पर उतने पावर्स नहीं थे। आपने देखा रहेगा तो सेबी का जो उसमें जो मेन चीफ होता है ना उसके पास पावर नहीं होता था इतना। पर आजकल जो सेबी के पास जो पावर दिए गए हैं ना वो भयंकर पावर्स है उनके पास। वो चाहे ना तो कंपनी को कभी भी डिलीट कर सकता है, कभी भी डिलीट कर सकता है। उसको लगे कि ये शेयर की वजह से इस शेयर में बहुत गफला हो रहा है, और होते भी है आजकल, गफले होते भी है। ये राकेश झुनझुनवाला वगैरह सब, आप बाहर से रोजी पिक्चर दिखता है कि भाई ये बहुत पैसा कमाता है, ये कैसे कमाता है, पर धंधा सबसे गंदा होता है, समझ रहे हो आप? धंधा सबसे गंदा होता है, और क्या सही क्या गलत अपने को कुछ पता नहीं है। मुकेश अंबानी, रिलायंस, ये सब चीज क्या बोले कि एथिक्स पे नहीं चलती है। एथिक्स के केस में टाटा आप गिन लो, टाटा सबसे बेस्ट है, उसका एथिकल वैल्यूज बहुत हाई है। अभी एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये इस चीज की वजह से आजकल मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसके ये सेबी भी आजकल जो पावर्स दिए गए हैं सेबी को वो भी इंक्रीज कर दिए गए। और जो अपने आने वाले टाइम में अभी मुकेश अंबानी के ऊपर पेनल्टी लगा तो आप समझ सकते हो कि किसी के ऊपर भी पेनल्टी लग सकता है। अदानी, अभी सपोज एक एग्जांपल ले लो आप अदानी का, तो बीच में सुब्रमण्यम स्वामी, आपको अगर पहचानते हो सुब्रमण्यम स्वामी को, तो उसका ट्वीट आया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि अदानी को ये सब पोर्ट वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह दे तो रहे हो आप, और उसका कभी डेट देखा कंपनी का? कंपनी का डेट देखने जाओ तो 70% उसका डेट है। 70% मतलब वो विजय विजय माल्या कभी भी बन सकता है वो, समझ रहे हो? विजय माल्या कभी भी फूर हो सकता है वो, इधर से भागने में उसको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। और ये सब पॉलिटिशियंस के साथ मिले लोग हैं सब। इसीलिए सेबी का वैसे देखने जाओ तो अभी ये थोड़ा यूजलेस तो है, पर चलता है, क्या करे, मार्केट है ऐसा। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने। कोई डाउट है किसी को प्लीज तो बोलिए।
नो सर। नो सर। No, sir. अभी ये सब टॉप टॉप कंपनीज है सब, कि ओएनजीसी है, टाटा है, विप्रो, ये सब लिस्टेड कंपनीज है अपनी, जो टॉप 10 में आती है। अदानी है, एचडीएफसी, ये सब ग्रुप्स हैं, उसमें अदानी, रिलायंस का बहुत सारा वर्टिकल, बिजनेस वर्टिकल है। अभी आपको मैं टाइप्स ऑफ मार्केट समझाता हूँ, बेयर एंड बुलिश। कोई मुझे समझा सकता है कि बुलिश और बेयर में क्या फर्क है? बेसिक कोई भी चीज, कोई नया नया इंसान, मतलब कोई जो बोला ही नहीं है आज, वो कोई समझा सकता है बेयर एंड बुल क्या मतलब होता है, बेयर एंड बुल का? बुल मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बियर प्राइस डाउन करवाता है, मतलब मार्केट को पूरा नीचे पछाड़ता है ऐसे। तो इसको बुल क्यों कहते हैं? इसको बुल क्यों कहते हैं? अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुलिश क्यों कहते हैं? क्योंकि बुल Because लोगों को बिकॉज ऊपर उछालता बेयर है, नीचे से ऊपर बुल उछाल लोगों को देता है, ऊपर उछालता है, और बेयर बेयर हाँ, बेयर सर बेयर ऊपर से बेयर सबको नीचे। थप्पड़ मार के नीचे गिराता है। स्कैम 1992 सबने देखा है, स्कैम 1992 यस का यस। आंसर है ये। यस सर। पछाड़ देता है मतलब। सही बात है, आपने मतलब सही एक्सप्लेन किया। बुल और बेरिश, बुल मतलब कि बुलिश, मार्केट बुलिश है, मतलब कि सबको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अप रहेगा, मार्केट अप रहेगा। और बेरिश मतलब कि राकेश झुनझुनवाला आप बोलते हो कि अपने बोलते हैं कि वो बिग बुल है, राइट? बिग बुल है, बिग बुल है। पर वो खुद अपने इंटरव्यू में ऐसा बोलता है कि मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा कमाया हूँ शेयर बेच बेच के। शेयर बेच बेच के मतलब, शेयर बेच बेच के मतलब वो बेर है, बेरिश है वो। कि वो वैसे इंडियन मार्केट्स में तो बुलिश ही है वो, पर वो शेयर बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा ना। शेयर बेचोगे तो आप उसको मतलब लिक्विड फॉर्म में आपके पास शेयर पड़ा रहेगा, और लिक्विड लिक्विड कैश ही नहीं रहेगा तो क्या उसका फायदा? अभी आपको मैं जो मार्केट के टर्म्स रहेंगे ना, जो भी इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग, टिकर सिंबल, ये सब जो आपको बेसिक जरूरी होगा कि अगर मार्केट में आप नए हो तो आपको ये समझना है, बहुत जरूरी है। सबसे पहला है टिकर सिंबल। अभी टिकर सिंबल को जो मार्केट, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो उसमें सपोज रिलायंस टाइप करोगे तो RIL ऐसा लिखा आएगा, तो उसको टिकर सिंबल बोलते हैं। कि अल्फाबेटिक जो उसका निमोनिक होता है ना, शॉर्ट फॉर्म मतलब। प्राइस मतलब जो करंट प्राइस है स्टॉक का, वो। ओपन और क्लोज मतलब जब कोई मुझे मार्केट का टाइमिंग बता सकता है? मार्केट का क्या टाइमिंग रहता है अपने यहाँ पे, इंडियन मार्केट का? 9:15 और 10 to 3। 9:15 to 10 to 4। 3:30। 9 to 3:30. एक 9:05 9:15 to 3:30. Pre-opening trade from 9 to 9:15. 9:07 to 3:30. opening 9 to 9:15 and closing, Yashvi? 3:30. 3:30। 3:20 को है ना, ना- बाय करना बंद हो जाता है, सेलिंग मतलब हो सकता है 3:20 के बाद 30 तक। एग्जैक्टली आपको पता है। तो क्लोज एंड ओपन प्राइस होगी। ओपन प्राइस मतलब जो 9:15 को प्राइस ओपन हुई, मतलब जो भाव खुला 9:15 को। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग 9:15 से होता है। 9 o'clock से 9:15 तक वो प्री ओपनिंग सेशन बोला जाता है। और 9 उस टाइम पे जो शेयर आप ऑर्डर डाल सकते हो, पर एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होगा उस टाइम पे। सर वो सिर्फ ऑर्डर भी नहीं प्राइस लगता अभी। सर 9:15 तक थोड़ी ऑर्डर लगता है। ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। आपका अगर आप ऑर्डर डालो, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो ना, उसमें आप ऑर्डर डालो ना, तो प्राइस का डिटर्मिनेशन उसी बेस पे होता है। आप ऑर्डर प्लेस करना मतलब कि वो मैं एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा ऑर्डर। समझ रहे हो आप? सपोज मैंने आज रिलायंस का एक शेयर का ऑर्डर डाला 2,000 रुपए, और भाव चल रहा है 2100, तो मार्केट को पता चलेगा कि आज शेयर होल्डर्स 2,000 का भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सही बात है। ऑर्डर एग्जीक्यूट तो 9:15 से ही होता है, पर ऑर्डर का जो वैल्यू सर प्लेस होता है, प्लेस भी नहीं होगा, पर सिर्फ आपको ऑर्डर डाल सकते हो आप। सर हाँ, एक बार क्या हुआ था, लाइक प्लेस किया तो ऑर्डर BPCL का 420 का भाव, तो सेल हो गया था। हो गया था आपका? यस सर, हो गया कौन था। सा स्टॉक एक्सचेंज पे किया था? NSE। NSE पर ब्रोकर कौन सा? चॉइस इक्विटी।
ये पता नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होता है, 9:15 से ही होता है तो मेरे हिसाब सच्ची में बाद में मेरी मॉम ने बोला कि भाव तो बढ़ गया, मैंने इसे ऐसे ही बेच दिए फालतू में करके, ऐसे सर मम्मी ने अगर बोला। 9297 में आप ऑर्डर डालते हो तो अगर आपके प्राइस के जो हो सेम होता है तो हो जाता है ऑर्डर, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आपके सामने बायर्स भी होने चाहिए, 9:15 बायर्स दोनों होने चाहिए तो हो जाता है ऑर्डर। नहीं, 9:15 से पहले रिजेक्ट ही होता है, कभी भी नहीं होता। नहीं मैंने हुआ तो था मेरा। मैं तो करता हूँ सर। लॉगिन ही नहीं होता अपना वहां पे तो। आज मार्केट चालू नहीं है, बाकी मैं आपको लाइव दिखा देता कि होता है कि हाँ, नहीं होता है मार्केट कभी भी। नो कभी भी नो नहीं सैटरडे होता। आज। आज सैटरडे है आज, बाकी मैं आपको मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल के आपको दिखा देता कि कैसे होता है। 9 से 9:15 के, आप लॉजिक समझ लो पहले। 9 से 9:15 के बीच में ऑर्डर डालते हो ना, तो वो मार्केट डिटरमाइन, मतलब मार्केट कंसिडर करता है उसको, पर वो सिर्फ मार्क जो प्राइस होती है ना, वो डिटरमिन करने के लिए कि भाई सपोज आपने 2,000 रुपए का ऑर्डर डाला रिलायंस का, और भाव 2100 कल का क्लोजिंग बोल रहा है, तो आज मार्केट बोलेगा कि ओपनिंग प्राइस 2,000 होगा। मतलब अगर सब बायर्स 2,000 रुपए का प्राइस डाले तो वैसा। अभी स्टॉप लॉस मतलब क्या, कोई बता सकता है स्टॉप लॉस मतलब क्या? हाँ सर, लॉस मेकिंग सिचुएशन में से बाहर निकलना, मतलब हमने हमने जितना सोचा, हम ऐसा जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं ना लॉस, उतने तक का स्टॉप लॉस ऑर्डर रख देते हैं। उससे नीचे जो प्राइस गया तो हम वहां पे एग्जिट हो जाते हैं। उस रिस्क कैपिटाइट बोल सकते हैं उसको अपने, मतलब आपका टॉलरेंस कितना है, रिस्क टॉलरेंस मतलब सपोज आज शेयर का भाव 100 रुपए है और आपने बाय करके रखा है और स्टॉप लॉस 90 डाल दिया, मतलब अगर 90 के नीचे 1 रुपए भी, 1 पैसा भी नीचे गया ना, तो तुरंत वो शेयर बेच बेच देगा वो, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है वो तुरंत बेच देगा। मतलब आपका रिस्क कैपिटाइट 10 रुपए का ही है। 100 रुपए का भाव है आज और आपने 90 रुपए का स्टॉप लॉस डाला है, तो 10 रुपए जो अगर शेयर 10 रुपए और 1 पैसा गिरा, तो आपका शेयर अपने आप बिक जाएगा, उसका मतलब है स्टॉप लॉस। और 52 वीक हाई लो मतलब कि पूरे साल में कंपनी कितना हाई बनाया, कितना उसका हाईएस्ट प्राइस कितना है पूरे साल में, और लोवेस्ट प्राइस कितना है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब जो अपना टोटल, जो बायर एंड सेलर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, वो कितना टोटल कितना हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो भी कंपनी का शेयर है, टोटल शेयर इनटू मार्केट प्राइस, जो उसका कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है। और डिविडेंड तो आपको पता है सबको। और इंट्राडे मतलब, कोई बता सकता है इंट्राडे मतलब? विद इन अ डे। सेम डे में परचेज और सेल कर देते हैं। नहीं, बोलिए प्लीज, क्या बोल रहे हो? सर सेम डे में परचेज और सेल कर देते हैं, स्टॉक खत्म कर देते हैं। परचेस और सेल दोनों होता है उसमें। यस सर, स्टॉक सेम डे और सेल कर देते हैं। आपको पता है कितने बजे तक ये स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है? मार्केट की लैंग्वेज में उसको स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। नो सर, 3:30 के पहले, 3:15 के पहले, 3:15 के पहले, ओके 3:15 का आपका जो भी इंट्राडे पोजीशन होगा तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को भी, मतलब कोई भी जवाब देना। अगर आपके पास शेयर नहीं है, आपके पास सपोज कोई शेयर नहीं है, तो आप पहले से बेच सकते हो शेयर को? ये शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यस जैसे सर। एक मिनट, कोई दूसरा प्लीज बोलो। यस वो सिर्फ इंट्राडे में ही होता है। इंट्राडे में ही होता है? नहीं, कर सकते हैं, हम सीएनसी भी कर सकते हैं। हाँ, सीएनसी होता है। अभी इंट्राडे कौशिक प्लीज बोलो ना आप आगे, क्या कैसे होता है वो, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राडे में सर वो सेम डे वो बाय सेल करना पड़ता है, और उसमें अपनी जितनी कैपिटल मनी होती है उससे हम और जो ब्रोकर हो उसको मार्जिन भी देता है इंट्राडे के लिए। चल, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या इंट्राडे खेल सकता हूँ? सर अभी तो नहीं खेल सकते क्योंकि सेबी का रूल रेगुलेशन बहुत है, इसलिए अभी तो नहीं कर सकते हैं सर। जेरोदा तो देता है, मार्जिन देता है अपने को, ब्रोकर है ना, सर वो मार्जिन देता है। प्लेज करवाने पड़ते हैं सर, प्लेज करा के हम कर सकते हैं। पता है ना शेयर तो आपको सामने। सबके सब ट्रेडर हो, सबके सब। अदरवाइज पेनल्टी अभी लग जाएगी। आप शॉर्ट सेलिंग, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब कि अगर आपके पास कोई भी शेयर नहीं है और आप बेयरिश हो, मतलब आपको पता है कि आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का मतलब जो शेयर है उसका भाव आज के दिन में नीचे जाएगा,
भाव गिरेगा। तो आप इसमें से कैसे पैसा कमा सकते हो? तो वो शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग मतलब ऊंचे भाव पे बेचो और कम भाव पे खरीदो, तो प्रॉफिट हो गया आपका। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, बराबर। अभी आप कैसे, मेन चीज आपको मतलब स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो पता ही है कि भाई शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर आपने विप्रो में 1999 में सब देखते ही हो आप इंस्टाग्राम पे कि भाई 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज 1 करोड़ होता, वैसा वगैरह सब। मतलब सब जो फैक्टर्स रहते हैं उसकी वजह से कंपनी का भाव ऊपर जाता है लॉन्ग टर्म पे, और उसमें फायदा होता है अपने को। पर यह फायदा किसको होता है? सिर्फ इन्वेस्टर्स को। ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत फर्क है। कोई समझा सकता है ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है? जैसे आप ट्रेड करते लगते हो मार्केट में, हाँ सर। क्या सर फर्क है बताओ? फ्लूक नाम का भी एक चीज होता है सर। क्या? फ्लूक नाम का भी एक चीज होता है सर, ऐसे ही मतलब मतलब मुझे आज इन्वेस्ट करना है, मैंने सोच समझ के फंडामेंटली स्टॉक मतलब कोई भी स्टॉक ऐसा फंडामेंटली स्टॉक लिया मैंने, तो मैं बराबर। इन्वेस्टर कहलाऊंगा। मतलब होल्डिंग में होल्ड करूंगा जो भी पोजिशन ट्रेड लूंगा, तो मैं विजन के साथ घुसा हूं अंदर के मेरे पास ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका कुछ भी न्यूज है या तो फिर कुछ भी मैंने उसका रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टर कहलाता है। फंडामेंटल्स का मीनिंग समझा सकते हो आप मुझे? फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स में तो सर ऐसे कोई भी मतलब कोई भी कंपनी है, शायद से टाटा की कोई भी कंपनी ले लो, तो फिर फॉर एग्जांपल अभी टाटा पावर है बराबर, तो अभी मैंने ऐसा सोचा कि मतलब ये क्वार्टर जो है ये यहाँ पे सोलर का जो भी अभी यूजेज बहुत हो रहा है, फिर मतलब एनर्जी और पावर का भी बहुत यूजेज होगा अभी। जो भी मैंने कंपनी है तो अभी सोलर रूफ कैंपेन अभी टाटा पावर नया नया लाया अभी, तो मैं वो भी सोच के एक बार इन्वेस्ट करूं जब प्राइस कम हो। मतलब मैंने पूरा फंडामेंटली मतलब उनको रिसर्च किया, स्टडी किया कि ये मतलब हो सकता है, वो टाटा पावर का ये विजन है, उनका ये टारगेट है उनका, जो भी ये मैं फंडामेंटल्स देख के अंदर एंटर कर रहा हूँ उनको इन्वेस्टर्स को। ठीक है, चल। वो एक आपका वो जो बोल रहे हो ना आप, वो एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन है। फंडामेंटल्स मतलब क्या? कि जो सर कंपनी इसमें आज खड़ी है, मेरी बात सुनो। कोई आज जो कंपनी खड़ी है, मतलब फंडा उसका बैलेंस शीट आपने उठाया और वगैरह रेशियो एनालिसिस किया, आपने रेशियो एनालिसिस सीखा रहेगा। जो भी आपका बीबीए वगैरह रहेगा हाँ उसमें रेशियो एनालिसिस आता था आपको, वहाँ पे मतलब बराबर। हम साल भर का मतलब वो हिस्ट्री और डेटा वो कलेक्ट करके वो भी देख सकते हैं ना हम, हाँ, प्रॉफिट वही और वही मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाँ, पी रेशियो जो भी होता है वो कितना है, सब हमको रिसर्च करना पड़ता है, वो फंडामेंटल्स बोलते हाँ, ये फंडामेंटल्स एनालिसिस हुआ। पर मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, आपको सही बोलूं, मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं चलता है। राकेश झुनझुनवाला बोलता है ये सब फंडा का मेंटल है। मतलब कि मार्केट फंडा का मेंटल क्यों है? क्योंकि अब अगर आप पास्ट, ये जो डेटा है वो पास्ट का डेटा है, राइट? और हैं। जो एक्सपेक्टेशन है वो तो एस्टिमेट ही होगा आपका, बराबर। हाँ सर, वो तो तो estimate है। एस्टिमेट, अगर आपको कंपनी का एक्चुअल आप वर्किंग देखो, उसके मैनेजर, वो राकेश झुनझुनवाला ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता है। सर वो कभी मैनेजमेंट, कभार सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीईओ का तो फिर किसी का भी बड़ा लेवल पे जो स्टेटमेंट होता है ना कोई कंपनी का, वो निकालता है, उस पे भी बहुत निर्भर होता है सर। अभी आप एक एग्जांपल दूं आपको। यस बैंक का सीईओ अभी जो बदला, अभी जो प्रशांत कुमार है यस बैंक का सीईओ, तो उसने आके बोल दिया कि भाई हमारा एनपीओ 1% से गिर गया और डिपॉजिट रेट भी बढ़ गया है। तो मार्केट का भाव क्यों नहीं बढ़ा? मार्केट क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया? क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया मार्केट ने? क्योंकि अभी भी शेयर होल्डर को रिस्क, आप प्लीज, किसी ने रेज हैंड किया। सर क्योंकि जब भी कोई नया सीईओ आता है ना, वो अपना वो क्लीन कर देता है, कोई भी उसमें कुछ भी जंक वाला हो तो वो क्लीन करके ही आता है, क्योंकि उसको वो नहीं, उसके ऊपर फिर प्रेशर आता है, इसलिए। ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि उसने पॉजिटिव न्यूज दिया ना सीईओ ने, तो प्रशांत कुमार ने, तो कि भाई यस बैंक के लिए, मतलब आप समझो कि पॉजिटिव न्यूज दिया है कि भाई उसका डिपॉजिट रेट बढ़ा, तो मार्केट को तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। कि अगर आज भाव 15 रुपए है तो 20% तो, मतलब 10% तो भाव बढ़ना चाहिए, 15 से 16 वैसा होता है। इतना मार्केट का वो मूवमेंट तो रहता ही है कि भाई अगर कभी भी कोई भी न्यूज आए ना तो मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। पर उसके केस में क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? क्योंकि यस बैंक बहुत रिस्की स्टॉक है और उसका जो पास्ट हिस्ट्री रहा है वो
आप मेरा एक्सपीरियंस देखो, मैंने यस बैंक है ना, आप मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। यस बैंक मैंने 400 रुपए पे खरीदा था। कितने रुपए पे? आज कितना भाव है? क्या 400 रुपए पे खरीदा सीरियसली? था वो। हाँ, यस बैंक 400 रुपए पे खरीदा था। उस टाइम पे क्या बोले जाता था, मैं भी एक नया ही था तब, जब 400 रुपए का भाव था, मतलब आज आज से 4 साल पहले, तभी उस उतना बोला जाता था कि यस बैंक 400 है ना, 1200 जाएगा, 1200 जाएगा। कितना? 1200 का भाव बोल रहा था यस बैंक, 15 1200 पे? जाएगा, 1200। आज क्या भाव है यस बैंक का? 15 रुपए। 15 रुपए। एवरेज मेरी 25 रुपए ही है, एवरेज मेरी 25 रुपए है अभी, क्योंकि वो जो उसका एफपीओ आया था उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, इसीलिए। अभी आपको क्या चीज है ध्यान में रखनी है स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? मतलब शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हो तो फिर ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हो तो स्टॉक कोई भी आज परचेज कर लो और उसको भूल जाओ। सीरियसली बोलता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक आप टाटा या रिलायंस ले लो, कोई भी अच्छा स्टॉक ले लो, उसको खरीद के रख दो, बस भूल जाओ। एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कुछ 80 रुपीज का लो बनाया था, 80 रुपीज का। आज कितना है भाव उसका? 300 तक टच करके आया है वो। क्यों? क्योंकि अभी फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार है, और इलेक्ट्रिशियन मतलब जो टेस्ला आई इंडिया में, तो उसका एक ही कॉम्पिटिटर रहेगा, टाटा। क्योंकि टाटा के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका विजन है रतन टाटा का, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसे ही सही रहा कि कंपनी का भाव इतना बढ़ गया। 80 रुपीज का था, आप सोच सकते हो 80 से सीधा 340। और आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस मतलब आप कितना लॉस खा सकते हो, कि भाई आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लो, मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। आपने रिस्क कम लिया, भाई मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो उतना रिटर्न भी कम रहेगा आपको। और अभी आपको सब मतलब आप जब भी शेयर में इन्वेस्ट करो, तभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सपोज आप कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करते हो, सपोज रिलायंस सिलेक्ट किया, तो अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट करो। रिलायंस एक ऑयल रिफाइनरी का एक सेक्टर, मतलब ऑयल रिफाइनरी वाला सेक्टर हो गया। फिर तो दूसरा फार्मा, फार्मा का अभी कोविड की वजह से जो जो जितने भी स्टॉक्स है सभी ऊपर गए। डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई मतलब कोई समझा सकता है डाइवर्सिफाई मतलब? डाइवर्सिफाई दी स्टॉक, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, ये आपने पढ़ा रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। कोई भी बता सकता है मुझे? हाँ हाँ, मतलब उसमें हम हमें हमें मेरे पास शायद से 1 लाख रुपए है, बराबर। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में मतलब एक ही स्टॉक में या तो फिर एक ही सेक्टर के स्टॉक में नहीं डालूंगा, अलग अलग सेक्टर्स में या तो फिर अलग अलग स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरा फंड बराबर, जो है एग्जैक्टली। वो डिवाइड करके मैं डाइवर्सिफाई करूंगा। मेरा फंड, मेरे पास जो पैसे हैं उनको मैं अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। बराबर। और लास्ट में मैंने लिखा है कि हाँ प्लीज यशवी जैन। सर आई हैव अ डाउट सर। हाँ बोलिए प्लीज। सर एमसीएक्स पर गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, पर डायमंड और प्लैटिनम क्यों ट्रेड नहीं होते? डायमंड और प्लेटिनम क्यों ट्रेड नहीं होता है? क्योंकि बायर एंड सेलर उसको ट्रेड नहीं करना चाहता है, और तो क्या रीजन है? नहीं तो भी समझ सर रहे हो? डायमंड तो अनमोल है ना सर, तो ऐसा थोड़ी ना होता है सर, वो क्यों नहीं होता सर? उसकी भी वैल्यू है ना सर, लाइक गोल्ड सिल्वर की है वैसे डायमंड की भी है ना सर। डायमंड गोल्ड वगैरह, गोल्ड और सिल्वर वगैरह का हॉलमार्क रहता है, बराबर। और डायमंड के केस में आप देखे बिना परचेज कर लोगे क्या? देखे बिना अभी आप कंपनी का फिनेंशियल्स देख सकते हो, डायमंड को देखे बिना परचेज कर लोगे क्या? डायमंड तो बहुत मतलब उसमें मतलब गलत तरीके के डायमंड्स भी बहुत आते हैं। अभी वो क्यों ट्रेड नहीं होता है, वो अभी जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर निर्भर करता है। अपना मार्केट इधर 6 घंटे चलता है, बाहर का मार्केट 24/7 रियल टाइम चलता है। ये एक्सचेंजेस के ऊपर होता है, समझ रहे हो आप? यस ये सर। एक्सचेंजेस के ऊपर होता है कि अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें रिस्क बहुत रहता है, डायमंड वगैरह में रिस्क बहुत रहता है। ओके। अभी ओके सर। इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर नहीं। अभी आपने मैंने आपको समझाया कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क क्या है। इन्वेस्टर मतलब कि आप आज पैसा डालो और भूल जाओ, पैसा डालो और भूल जाओ, मतलब कि कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है, और आपको लग रहा है कि भाई कंपनी का फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा, तो आप पैसा डाल के भूल जाओ उसमें। वो पैसा भले ही मतलब जो ऊपर नीचे होता है वो तो नॉर्मल पूरे साल में रहेगा ही, पर आप 5 इयर्स डाउन द लाइन देखोगे तो कंपनी का भाव
आपको 3 गुना तो मिलेगा ही। अभी ट्रेडर मतलब जो रेगुलरली ट्रेड करता है और जो इंट्राडे वगैरह रहता है वो सब ट्रांजेक्शन करता है, वो उसको अपने ट्रेडर बोलते हैं। अभी आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज में आप पहले अंदर जाओ, उसके पहले आपके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाई है, प्लीज आप देखिए। विजिबल है ना आपको? यस सर। Yes, sir. सब लाइन ऊपर पढ़ना, क्या वो दिखा रहा है। सही से प्ले नहीं हो रहा है इसमें, बाकी आपको दिख तो रहा है ना आपको? यस Yes, सर, sir. थोड़ा लैग आ रहा है। यस सर। स्टॉप लॉस हिट ना हो, स्टॉप लॉस हिट ना हो, वो प्रे कर रहा है कि स्टॉप लॉस उसका हिट ना हो। डो जोन्स, एडीआर, जी, वो सब ये फॉरेन मार्केट्स है। एसजीएक्स निफ्टी यूएस का मार्केट है, वो सब ग्रीन खुला, पर निफ्टी अभी अपना वापिस से नीचे ही गिरा। वो ऐप बंद करके सो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अभी वो पोजीशन बेच के निकल गया। अभी दैट्स ऑल। आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज आप पूछिए मेरे को। एनीवन प्लीज। एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. प्लीज कोई किसी का भी कुछ भी क्वेरी हो मार्केट के रिलेटेड प्लीज। हाँ प्लीज समर्पण। सर आपने जो शॉर्ट सेलिंग का बोला वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वर्क करता है वो? हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपको एक और चीज, आप अगर शॉर्ट सेलिंग के साथ आप अगर ये मार्केट का वगैरह जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रहता है, मतलब जो बैलेंस शीट वगैरह, वो आपको कैसे देखना रहेगा, मतलब कहाँ से ये सोर्स, कहाँ से ये सब आपको मिलेगा, वो मैं आपको बता देगा, ठीक है लास्ट में। अभी शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या समर्पण, आपके पास कोई शेयर नहीं है, अभी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बराबर? आप अनम्यूट रखो प्लीज, आप साथ साथ में अपने इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? आपके पास कोई शेयर नहीं है, मतलब आपने कुछ बाय करके नहीं रखा, और सपोज आज सुबह आप ऐसा लगता है कि भाई रिलायंस का भाव नीचे जाएगा, 100 रुपए से रिलायंस का भाव नीचे जाएगा, तो आपको उसमें से पैसा कमाना हो तो कैसे कमाओगे? ऊपर के भाव पे बेच के नीचे के भाव पे खरीदना, उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। सपोज रिलायंस का भाव एक 2100 है, तो 2100 के भाव पे बेच के 2000 के भाव पे खरीदना, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। यस सर। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, समझ गए आप? यस सर। ये उसको इंट्राडे भी बोलते हैं, मतलब इंट्राडे में ही ऐसा पॉसिबल है। ओके सर। अभी आपको जानना हो कि अपने बीएससी की साइट वगैरह रहती है, तो उसके ऊपर से आप सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, सपोज कि जो बैलेंस शीट, पीएनएल, वो सब वगैरह रहता है ना, तो उसके ऊपर से आपको सब मिल जाएगा बीएससी की वेबसाइट पर। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज मैं आपको बता दूंगा। देखना चाहते हो? यस सर। Yes, यस सर। यस सर।
स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। ये बीएसई की वेबसाइट है, ठीक है। अभी कोई भी एक स्टॉक ले लो आप, कोई भी आप बोलो, कोई भी एक स्टॉक बोलो आपको जो कंपनी ITC। पसंद। क्या? कौन सी बोली? बजाज फाइनेंस। बजाज। ITC ले लो, कोई भी ले लो। ये आपको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है ना स्क्रीन? ये सब देखो, अभी सर्च हो रहा है, 1 मिनट। ये सब जो उसका डिटेल्स रहेगा, तब आपको ये जो ओपन क्लोज हाई लो, 52 वीक हाई 52 वीक लो, अपर प्राइस बैंड लोअर प्राइस बैंड, ये सब रहेगा, आपको दिखेगा। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उसका। फिर अभी आपको फिनेंशियल्स में जाने का, एनुअल रिपोर्ट्स में जाने का, जो भी कंपनी का आपको जो भी ईयर का देखना है, दिख रहा है आपको? जो भी ईयर का देखना है 2020 से लेके 2019, 18, 17 सभी ईयर का अवेलेबल है। एक मिनट, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है लोड। ये सब जो आप ये लिंक खोलोगे ना इधर से, तो आपको ये पूरा बैलेंस शीट दिखेगा इधर। अभी ये नहीं खुल रहा है, मतलब अभी उधर से ही आपको बैलेंस शीट, ये पूरा आपको बैलेंस शीट, पीएनएल, उसका जो भी डिटेल्स है, कंपनी का फ्यूचर क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि भाई कंपनी का मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एनालिसिस आप कर सकते हो। और अगर आप किसी की भी प्राइवेट कंपनी का देखना चाहते हो तो उसके लिए ये बीएसई पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर कोई भी ये जानना चाहता हो कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कैसे फाइनेंशियल्स देखा जाता है, मतलब कैसे कहाँ से एक्सपेक्ट होता है, तो मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करना। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो आज थोड़ा टाइम भी कम है, इसलिए मैं नहीं बता सकूंगा, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा आपको ये प्रोसेस बताने के लिए। तो कोई भी मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो मैं अभी इधर कंक्लूड करता हूँ अपने इस सेशन को। Thank you so much, BK School and all team for inviting me for giving this lecture on basics of the stock market. Hope you guys, you were very patient listeners and a very good audience. So hope you guys enjoyed a lot. थोड़ा बोरिंग नहीं रहेगा आपको, जो भी किसी को भी पता ना चला हो तो उसके लिए बोरिंग रहा होगा। और आई ट्राइड टू मेक इट मैक्सिमम, जितना भी हो सके उतना मैं अपने इंटरेस्टिंग हो सके उतना बनाया मैंने आपके लिए। So thank you so much. I am signing off. Thank you so much, sir, for sharing, for enlightening us with so much valuable knowledge. We had learned a lot from this, and this was such an insightful webinar for us. At last, I would also like to thank Neelam ma'am and Darshini ma'am for giving us this wonderful opportunity. And at last, I would like to thank all the students who showed their enthusiasm and participated in a webinar and supported us. At last, I would like to ask all of you to turn on your cameras so we can capture this moment. So if you all can turn on your cameras, please. Thank you so much, everyone, and thank you so much, sir. We were very lucky to have you as our speaker. Thank you so much, everyone.